اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان سے اہم رابطے اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر تحریک انصاف یہ شرط ہماری مان لے تو پھر ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ آخر وہ شرط کون سی ہے؟ کیسے رابطے ہوئے؟ عمران خان نے مزدوروں کا ساتھ کیوں دیا؟ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھیج دیا، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف کو کلین چٹ دلوانے کا نیا طریقہ کار لے کر آ گئیں۔ آج ان پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس پہلے نقطے کے اوپر بات کروں گا۔ اس کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اور تحریک انصاف کے درمیان رابطے ہوئے ہوں، اور ان رابطوں کی وجہ اور اس کے اندر ایک شرط یہ رکھی گئی کہ اگر آپ یہ شرط مان لیں، اگر آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں، ہمارے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے روک ٹوک ہو جائے تو پھر ہم آپ کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ واپس وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہونی چاہیے اچھے طریقے سے اور آئین کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ کیا یہ کوئی فی الوقت اپنا فائدہ چاہتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو استعمال کرنا چاہتی ہے، یا پھر وہ حقیقت میں سنجیدہ ہے؟ یہ خبر نہایت ہی اہم ہے جو ہمارے سورسز ہیں۔ اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور یہ کہا ہے اس کے اندر کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو یہ کہیں کہ جو ہمارے خلاف کمپین چلتی ہیں، جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ جب بھی کوئی ٹرینڈ بنانا چاہے منٹوں اور سیکنڈوں میں بنا دیتے ہیں۔ کسی کی کردار کشی کرنی ہو، کوئی غلط اقدام کرے تو وہ چیزیں پہلے سے نہ صرف ایکسپوز ہو جاتی ہیں بلکہ ان کے خلاف جو بھی چیز کرنی ہو، چونکہ ایک غوری مزائل کی حیثیت رکھتا ہے آج کے دور میں اینڈرائڈ فون جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ان کا 7واں نمبر ہے، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، فالورز ہوں یا ان کی ٹیم کو مینج کرنے والے اظہر مشوانی ہوں یا پی ایچ ڈی افتخار دورانی ہوں، ان کا کوئی ثانی نہیں سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے۔ اور یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، اور جب لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ ٹویٹر کی اہمیت کیا ہے، یوٹیوب کیا ہے، فیس بک کیا ہے، یہ ٹک ٹاک کیا ہے، تو اس وقت عمران خان نے ساری پلاننگ کر کے اور پروفیشنل لوگوں کو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر لایا، اس کا ان کو ہیڈ بنایا، اور انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی جتنی سیاست جتنی چیزیں تھیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا جیسا کوئی بھی طاقتور نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اگر آج کوئی ٹویٹ کرے یا کوئی چیز لگائے تو وہاں ان کی وہ ریٹنگ نہیں ہے ایک بڑے ادارے کی جتنی کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ہے۔ اب یہ شرط جو ہے کہ آپ ہمارے اوپر تنقید کرنا بند کر دیں، ہمارے خلاف جو ٹرینڈ چلتے ہیں ان کو بند کر دیں، ہمارے حوالے سے سوچ کو بدلیں، اپنے رویے کو بدلیں، ہم بھی اس میں تبدیلی لاتے ہیں، تو کیا یہ ایک پیج کے اوپر آ سکتے ہیں؟ اور کیا عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لایا جا سکتا ہے؟ اس سے قبل بھی بتایا تھا آپ کو، جو بات لوگوں کے لیے مشکل تھی اس کو ہضم کرنا کہ مذاکرات ہوں گے، ہم بار بار کہتے رہے، مذاکرات ہوئے، اور کل بھی 2 مئی کو مذاکرات ہوں گے۔ یہ بھی بتایا تھا کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ مذاکرات ناکام ہوں گے، کسی صورت جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ پھر عدالتوں کے حوالے سے بتاتے رہے۔ وہ خبر بھی آپ کو یاد ہوگی کہ چیف جسٹس اور آرمی چیف کی فون کے اوپر 12 مرتبہ بات ہوئی، 3 بار ہم نے خبر دی، اور پھر اس چیز کو جو ہے وہ اہم لوگوں نے آ کے کنفرم کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کہ ہاں بالکل آرمی چیف کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی۔ اور اب یہ جو خبر ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کے ذریعے جو ہمارے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، جو بغض ہے، جو نفرت ہے، اس کو اگر کم کر دیا جائے تو ہم بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پاک فوج جو ہے عوام کی وجہ سے ہے، عوام کے لیے ہے، اس ملک کے تحفظ اور کے لیے ہے، یہ عوام کے محافظ ہیں۔ چند لوگوں کی وجہ سے پورے ادارے کو بدنام نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جب عوام جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہی عوام جو ہیں وہ آرمی کے ساتھ ہونی چاہیے، تو لہٰذا ان کے تو مفادات جڑے ہیں، اور جڑے اس لیے ہیں کہ عوام جو ہے اس کا جھکاؤ جس طرف ہوگا، پاک فوج
हमेशा उसी तरफ गई और इन्होंने माज़ी में भी ऐसे किया और हाल में भी ऐसे करना पड़ेगा और मुस्तकबिल में भी ऐसे ही होगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर से किस तरह की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, टॉप ट्रेंड को छोड़ दीजिए और चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं उसमें चंद नाम ले लेता हूँ। वो नाम किस नौइयत के हैं? जीएचक्यू से बने सहाफ़ी वजाहत सईद खान, पाक आर्मी से रिटायर्ड मेजर आदिल राजा, शाहीन सबाई जैसे लोग और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको ये कहा जाएगा कि आप जो हैं वो पाक फ़ौज के हवाले से चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कीजिए, उनके खिलाफ बातचीत नहीं कीजिए। और ख़ासकर पीटीआई के जो वर्कर हैं उनको इमरान खान साहब एक जो कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या लाइव खिताब करके उसके अंदर हदायत दे सकते हैं, बाज़ लोगों को फ़ोन के ऊपर ऐसा कह सकते हैं, मगर इमरान खान उस वक्त तक इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और बाज़ चीज़ें उनके कंट्रोल में भी नहीं हैं। अब मेजर आदिल राजा हैं, वो पाक फ़ौज के अंदर से गरगा बेदी लंका डा रहा है, पिछले कई अरसे से ऐसे कर रहे हैं, उनकी खबरें सच साबित होती हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ कि वो लंदन में बैठ के मेजर आदिल चीज़ें कर रहे होते हैं और वही चीज़ें दुरुस्त साबित होती हैं। तो क्या इमरान खान इनको काबू में रख सकते हैं, कर सकते हैं? सब चीज़ें मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाज़ लोगों के तो अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी अटैचमेंट है, अपनी सोच है, अपना नज़रिया और फ़िक्र है। वो भी शायद यही चाहते हो मुल्क व कौम के फ़ायदे के लिए हम ये चीज़ें करें, मगर कोई भी ये नहीं चाहता कि पाक फ़ौज जो है, यकीन जानिए कोई शख्स ऐसा मुहिब्बे वतन ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि उनके खिलाफ बोला जाए। क्यों? इनकी कमज़ोरी मुल्क और कौम की कमज़ोरी है और इनकी मजबूती पूरे मुल्क की मजबूती होती है। ताहम देखते हैं कि ये जो शर्त रखी गई है ये मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये आज की बहुत बड़ी खबर अपने बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाक फ़ौज ने तहरीक इंसाफ से राब्ते किए हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें कर लें तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और ये बर्फ़ शायद पिघल जाए। चूँकि अवाम ताकत का सरचश्मा है और अवाम जो हैं उनसे बड़ी ताकत कोई नहीं होता, उसके सामने इस तरह की 10 फौजें भी कोई मायने नहीं रखती। जब अवाम किसी का साथ दें तो इमरान खान जैसा शख्स जिसके ऊपर तनकीद हो रही थी वो जो ही वजारत उज़्मा से हटा, अवाम ने साथ दिया, सबसे पावरफुल बन गया। जब अवाम साथ ना दें तो 11 जमातें मिल के भी इलेक्शन करवाने का फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता है कि हम 11 जमातें मिल के भी इलेक्शन के अंदर जाएँ तो हम हार जाएंगे। आप इससे इमेजिन कीजिए कि अवाम जो होते हैं उनकी कितनी हैसियत होती है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो कितने अहम हैं। और आईन पाकिस्तान भी यही कहता है कि अवाम असल में ताकत का सरचश्मा है और पूरी दुनिया के अंदर जहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पे अवाम ही की ताकत से वोट की पर्ची से लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर वो हालात आन पहुंचे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मार्शल लॉ भी लगा दे, यकीन जानिए उसको 80% कबूल नहीं किया जाएगा, उसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ना तो मुल्क मुतअम्मल हो सकता है, उसके माशी हालात ऐसे हैं किसी इमरजेंसी के, माशी इमरजेंसी के, किसी मार्शल लॉ के। इस मुल्क के अंदर चलने वाली लूली लंगड़ी जमहूरियत ही इस मुल्क के लिए बेहतरी है और प्लस बेशक मिलिट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन इसका जमूद टूटेगा, आहिस्ता आहिस्ता टूटेगा। और जो शऊर पिछले 1 साल में पाकिस्तान के अवाम की समझ में आया, जो उनको बातें समझ में आ चुकी हैं, इसके बाद वो किसी की बैत नहीं करेंगे। अलग बात है कि आज भी पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तैयब उर्दगान की तरह इमरान खान का साथ नहीं दे रहे और ना ही टर्की की तरह का उनके पास उतना शोर आया। लेकिन जो आ चुका है ये 30 साल के बाद आना था, जो 1 साल के अंदर चीज़ें हो चुकी हैं। अगले 2 पॉइंट के ऊपर मुख्तसर सी बात कर लेता हूं कि इमरान खान ने मजदूरों का साथ क्यों दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया। आप देखिए कि दोहरा मेयार कैसे है कि आपने रैली क्यों निकाली, आपने मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती क्यों किया, आपने उनके हक में आवाज़ क्यों उठाई। इमरान खान जिसकी जान को खतरा है, भले वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में और ऊपर जाली लगा के और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए, महफूज रखते हुए बाहर निकले, मजदूरों के साथ पावर भी शो की और मजदूरों के साथ खड़े हुए, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि रैली की इजाज़त नहीं है। दोहरा मेयार इस तरह से है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मजदूर डे वो भी मनाएंगी, मजदूरों से इज़हार यकजहती वो भी करेंगी, लेकिन उनको अलाउड है। अब वो रैली इसलिए नहीं करते कि लोग ही नहीं निकलते बाहर, 1000 लोग भी नहीं आ सकेंगे, माजरत हो सकता है चंद हज़ार आ जाएं, लेकिन वो हैसियत नहीं है, वो उल्टा बदनाम होंगे, एक्सपोज होंगे, उन्हें कोई नोटिस नहीं है। लेकिन इमरान खान ने रैली क्यों निकाली? अब अवाम को नोटिस भेजो कि आप अवाम जो है वो इमरान खान के साथ क्यों हैं, आप मजदूरों के हक में क्यों बैठते हैं। तो ये अजीब किस्म का गोरख धंधा है कि आप अवाम के साथ क्यों शामिल हुए, रैली क्यों निकाली और
नोटिस भेज दिया गया। इंतहा है, अक्सर मैं कहता हूँ इस मुल्क के अंदर वो हो सकता है जो कहीं पे नहीं होता, और ऐसा हमने देखा, ऐसा हुआ, अमली तौर के ऊपर हुआ। अब नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट का जो नया तरीका है वो अपना लिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मेरे वालिद को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को गलत तरीके से नाअहल किया गया, उनको सज़ा सुनाई गई। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ऐसे किया, इस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े के प्रेशर की वजह से ऐसे किया। उसमें वो जनरल फैज़ हमीद का नाम लेती हैं, उसमें वो साकिब निसार साहब का नाम लेती हैं, और वो ये कहती हैं कि वो उनके हवाले से जितनी वीडियो हैं, ऑडियो हैं, जो शवाहिद उनके पास हैं, उनको सामने लेके आएंगी, प्रेशर डेवलप करेंगी, और हम इस तरह करेंगे। और ये एक नया तरीक़ाकार है अपने वालिद साहब को, यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर यहाँ पे रिमाइंडर दूंगा, मैं खुद हैरान हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 25 अरब रुपए के करप्शन का केस था तो वो ख़त्म हो गए, ये वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, उनके ऊपर से केसेस ख़त्म हो सकते हैं। सलमान शहबाज, ये जितने भाई हैं, ये बाप हैं, इनके तो केसेस एक तरह से ख़त्म हो गए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहीं की वहीं है, थोड़ा सा रिलीफ मिला। नवाज शरीफ वहीं हैं, हसन हुसैन नवाज वहीं हैं, इनके केसेस क्यों ख़त्म नहीं हुए? शक है इस्टेब्लिशमेंट को, यकीन नहीं है उनको इनके ऊपर, चूंकि उनको पता है कि ये जब भी किसी तरह पावर में आएंगे फिर हमारी तरफ तोपों का रुख करेंगे और इनको बेतबारा समझते हैं। उनको ये है कि ये लड़कती तलवार इनके ऊपर रखेंगे, जब तक ये चीज़ें उनके ऊपर रहेंगी उस वक्त तक ये किसी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। यही वजह है कि शहबाज शरीफ चाहते मुज़ाकरात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के, और यही वजह है कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ और उनकी जितनी लॉबी है, जिसमें जो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, मेरे जहन से नाम निकल गया, जिनको सर में डंडा मारा गया था, ज़ख्मी हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में वापस लाने की बातें हो रही हैं, और ये सारे लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी ना हो, इलेक्शन की कोई डेट का तयन ना हो, कौमी इंतखाबात ना हो, उस वक्त तक ना हो जब तक नवाज शरीफ साहब का केस ख़त्म नहीं होता, नाअहलियत ख़त्म नहीं हो जाती, वो वापस पाकिस्तान नहीं आ जाते, दोबारा कैंपेन नहीं चलाते, तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने लाया था, मैं हो सकता है नाअहल हो जाऊँ, वज़ीर-ए-आज़म तो बन गया, वज़ीर-ए-आला पहले रह चुका हूँ, हो सकता है आइंदा इलेक्शन ना लड़ सकूँ और वज़ीर-ए-आला भी ना बन सकूँ। पहले नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे, तो लिहाजा वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं और वो उनके साथ इख्तलाफ नहीं करना चाहते। बहरहाल देखते हैं ये चीज़ें किस करवट बैठेंगी, क्या हालात होंगे। आज की बड़ी खबर कि इस्टेब्लिशमेंट का तहरीक इंसाफ से राब्ता, अपना रवैया बदलिए, हमारे खिलाफ बातें लिखनी बोलनी बंद कर दीजिए, तो शायद हम नरम गोशा रखेंगे और एक पेज के ऊपर फिर से आ सकते हैं। आपको लगता है ऐसे मुमकिन है, ऐसे हो सकता है कि नहीं? अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।